جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جسے اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1، بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ نمبر 2، اپنی خوبیاں۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ نمبر 5، اور بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دو۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھین لی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات اور فائدے کو دیکھنے والا انسان کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالی نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے؟ اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر۔ یہ بات انسانوں کے طے کرنے کی نہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔
हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में बुरे होते हैं। जिस मुआशरे में सब चलता हो, फिर वो मुआशरा मुश्किल से ही चलता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं रहता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। कल की सोच को गलत समझकर इंसान आज की सोच पर नाज करता है। आने वाले कल में ये सोच भी गलत हो सकती है। 5 चीजों से हमेशा दूर भागो। नंबर 1, अमीर से जब वो भूखा हो जाए। नंबर 2, कमीने से जब वो अमीर हो जाए। नंबर 3, नशाबाजों की महफिल से। नंबर 4, फहश नावलों और रसालों से। नंबर 5, और तोहमत की जगह से। 5 चीजें हमेशा कबूल करो। नंबर 1, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो। नंबर 2, गरीब की दावत चाहे तकलीफ हो। नंबर 3, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो। नंबर 4, भाई का उज़र चाहे दिल ना माने। नंबर 5, और दोस्त का हदिया चाहे हकीर हो। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी से मट्टी पर लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर लिखना। इल्म नौकरी के हसूल के लिए हासिल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका असल मकसद अपने अंदर की जहालत को पहचानना और उसे खत्म करना होना चाहिए। कोई भी मर्द या औरत सच्चे प्यार के बारे में नहीं बता सकता जब तक कि उससे शादी किए हुए 25 बरस का अरसा ना बीत गया हो। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आपकी उम्र इतनी नहीं कि सारी गलतियां खुद करें। अक्सर लोगों के जब मकसद खत्म हो जाते हैं तो उनका ज़मीर जाग जाता है। जब तक मफाद रहता है, ज़मीर भी सोया रहता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी खुद को साबित नहीं कर पाते। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। कामयाब जिंदगी की निशानी ये है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो जिंदगी में कोई पछतावा ना हो। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान होता है। इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह जाती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिंदगी में हर शख्स को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो जवानी में भरपूर मेहनत करते हैं उन्हें बुढ़ापे में ख्वार नहीं होना पड़ता। इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठा करो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। अगर कोई शख्स तुम्हें खो देने से खौफजदा ना हो तो जान लो कि उसे कभी तुम्हारी परवाह थी ही नहीं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। जिंदगी से कभी प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती।
और मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात उन लोगों से रहता हूं जो मेरे साथ होते हुए ज़हन में बुग़्ज़ और नफरत रखते हैं। अक्सर लोगों में तकब्बुर होता है। हमारे झगड़े इसलिए भी ख़त्म नहीं हो पाते क्योंकि हम झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करें कि अपनी आवाज़ को मध्यम और लहजे को नरम कर सकें। हमारे बहुत से मसाइल सिर्फ इतना कर लेने से हल हो सकते हैं। लोग बदल जाते हैं, मोहब्बत दुख देती है, दोस्त छोड़ जाते हैं, मामलात खराब हो जाते हैं, लेकिन याद रखें कि जिंदगी चलती रहती है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार इंसान थे। इंसान परेशान होता है तो रास्ता बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, इरादा बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, हत्ता के घर भी बदल लेता है, मगर अफसोस खुद को नहीं बदलता। सच्चे ख्वाब की 4 अलामात होती हैं। नंबर 1, सच्चा ख्वाब अक्सर तहज्जुद के टाइम आता है और उसकी ताबीर भी जल्द होती है। नंबर 2, सच्चा ख्वाब एक नेक और मोमिन शख्स को आता है। नंबर 3, सच्चा ख्वाब अक्सर अच्छा होता है और देखने वाले को खुशी महसूस होती है। नंबर 4, जो शख्स सच बोलने का आदी होता है उसका ख्वाब उतना ही ज्यादा सच्चा होता है, और जो झूठ बोलने का आदी होता है उसका ख्वाब झूठा होता है। लिहाजा झूठे और गुनाहगार लोगों के ख्वाब अक्सर झूठे ही होते हैं। नींद को इबादत बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बावजू होकर सोया करें। अगर कोई शख्स तुम्हें पाने के लिए अपनी अना की कुर्बानी दे डाले तो ऐसे शख्स को हमेशा अपने करीब रखो। हमने अपने घरों के अंदर कुरान मजीद मुकद्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि अब वहां तक हाथ नहीं पहुंचता।